Welcome in your science class. Today I am going to start chapter number 4 of your science book, that is nervous system. And this chapter is very much interesting and very much important because this system is important in our life, as this system are control the other system in our body. So without wasting time, let's start today's class. All the actions of our body are controlled by the nervous system, such as smelling, tasting, hearing, seeing and feeling. So children, all of you know that this all things are happen with the help of our sense organ. Like we are smelling with the help of our nose, and we are tasting with the help of our tongue, hearing with the help of our ears, seeing with the help of our eyes, and the feeling with the help of our skin. That means this all sense organs are controlled by the nervous system. So if anyone's body's nervous systems are not working properly, in that case the other system is also affected. That's why the nervous system is very much important. Now the nervous system is most vital for us. It controls all other systems of our body. The nervous system consists of the brain, spinal cord and sensory organs and the nerves. That means the nervous systems are doing the lots of work, and this all works are happen through the help of these three parts of our body. One is brain, second one is spinal cord and the sensory organs and the nerves. Okay, so all these parts of the body are consist and make the nervous system. Then that connects these organs with rest of the body. These three organs are connect with the help of the nerves with the other rest of the parts of our body. Together these organs are responsible for the control of the body and communicating among its parts. Now the next part is the nervous system makes us aware of our surroundings, that whatever we can see, we can hear, we can learn, everything is controlled by our nervous system. It helps us to see, hear, feel, smell, think, write, work, run, do, remember or any other things. Okay. One thing you all know that we all are remember of our birthday and of our parents' birthday, our closest friend's birthday. So how it is possible? Can you think? Can you imagine? Because with the help of our good memory, जो भी हम लोग याद रखते हैं, हम लोग की जो बर्थडे, जो मेन चीज़ है हम सबको याद रहता है कि हम लोग की जो बर्थडे, हम लोग की पेरेंट्स की बर्थडे, हम लोग की जो बेस्ट फ्रेंड है उसके बर्थडे. तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे हम लोग याद रखते हैं सालों भर, जितना ही साल जाता है हम लोग को ये डेट हमेशा याद रहते हैं. बिकॉज with the help of our brain, because our brain store this informations in our memory. तो हम लोग की जो ब्रेन है वो मेमोरी में ये सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं. ओके, नाउ वन मोर थिंग दैट आई एम नाउ टेलिंग यू सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस चैप्टर. हम तुम लोग को अभी जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये भी तुम लोग को याद रहेगा हमेशा, बिकॉज यू हैव अ गुड मेमोरी इन योर ब्रेन. तो तुम लोग जो मेमोरी है तुम लोग की, इसके वजह से तुम लोग जो भी सुनते हो, जो भी देखते हो, वो तुम लोग को बहुत दिनों तक याद रहते हैं. बिकॉज आवर गुड मेमोरी, हम लोग की जो मेमोरी है उसमें वो हेल्प करते हैं. राइट, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रेन, जो कि नर्वस सिस्टम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी and it sends and receives messages from the different parts of our body.
थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। तो ब्रेन का जो क्या काम होता है, ब्रेन इज सेंड्स एंड रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हम लोग की जो बॉडी की जो डिफरेंट पार्ट है, जैसे कि आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये सारी चीज़ जो भी फील करते, जो भी देखते, जो भी सुनते, वो सारी इन्फॉर्मेशन को थ्रू द नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक, ब्रेन में भेजते हैं। देन ब्रेन गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू आवर सेंस ऑर्गन। फिर ब्रेन क्या करती है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करते, पहले लेते हैं, फिर हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते कि हम लोग को क्या करना चाहिए, या हम लोग क्या देख रहे, क्या सुन रहे, वो सारी कुछ चीज़ हम लोग को ब्रेन बताती है। ओके, नाउ द ब्रेन गेट्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड विच गिव्स एनर्जी टू फंक्शन। तो ब्रेन में क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजन की फ्लो होती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड्स किया जाता है ब्रेन को, बिकॉज ब्रेन नीड सम ऑक्सीजन फॉर डूइंग सम एनर्जी ऑफ द वर्क। ब्रेन जो भी काम करते हैं उसके लिए ब्रेन को एनर्जी की चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलते हैं, ब्रेन को ऑक्सीजन से। So whatever we read or write is stored in our memory of brain and we can recall them at a time when we need it. जैसे हम लोग किसी का जन्मदिन याद रखते हैं, we are always remember our birthday and when they are needed we recall it. तो जब भी हम लोग को वो ज़रूरत होती है तो हम लोग उसको रिकॉल करते हैं, मतलब उसको याद करते हैं वापस से। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द ब्रेन हैज़ अ 3 parts. तो whatever work is doing by the brain, so which parts help them? तो ब्रेन जो भी काम करते हैं उसमें ब्रेन को हेल्प कौन करते हैं, उसमें 3 part होता है। वन इज द सेरिब्रम, देन सेरिब्लम एंड द मेडुला और द ब्रेन स्टेम। मेडुला का दूसरा नाम है ब्रेन स्टेम। ओके, तो ब्रेन जो है वो तीनों पार्ट को लेके होते हैं। वन इज द सेरिब्रम, फर्स्ट वन इज द सेरिब्रम। सी this part is the cerebrum and this is the largest part of the brain. जो cerebrum होती है वो ब्रेन की सबसे बड़ा वाला पार्ट है। एज यू सी इन द फिगर ऑफ योर बुक, जैसे तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि देखो इतना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा पार्ट जो है उसको कहते हैं सेरिब्रम। और इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स द ऑल सेंस ऑर्गन। मतलब सेरिब्रम किसको कंट्रोल करते हैं, हम लोग की जो भी सेंस ऑर्गन से, सपोज आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, ये सारे जो सेंस ऑर्गन्स की फंक्शन होती है, जो भी काम होती है, वो सारी चीज़ को कंट्रोल करते दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम। ओके, नाउ इट इज़ द लार्जेस्ट मेन पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। इट हैज़ अ मेनी ग्रुप्स एज यू लाइक इन द पिक्चर। देख जैसे तुम लोग को दिखाई दे रहे हैं कि ये से ग्रूविंग मतलब फोल्डिंग करके होती है इसके जो पार्ट्स, सो दैट इट कैन फिट इनटू द स्कल। इसके जो ये स्ट्रक्चर है, जो फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर, इसी के हेल्प से वो स्कल के अंदर बहुत आसानी से फिट हो जाता है। नाउ यू कैन यू आस्क दैट व्हाट इज़ द स्कल। द स्कल इज़ द आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सो स्कल क्या होता है, जो हम लोग की ब्रेन की जो ऊपर का पार्ट होती है, जैसे जिसको हम लोग बाहर से देख सकते हैं, हम लोग की जो हेड के ऊपर रहती है, हेड में रहती है, उसको कहते हैं स्कल। स्कल क्या करती है, ब्रेन के उसके अंदर में जो भी पार्ट्स होती है ब्रेन का, उसको प्रोटेक्ट करते हैं हेलमेट की तरह। ओके, इट परफॉर्म्स द वेरियस फंक्शन। इट इज़ द सेंटर ऑफ द इंटेलिजेंस। मतलब हम लोग जो भी याद रखते हैं इसका कारण होता है ये पार्ट सेरिब्रम। मतलब जो भी हम लोग अपने मेमोरी में याद रखना चाहते हैं, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्ट। नाउ सेकेंड, इट कंट्रोल्स द सेंस ऑर्गन एज यू टोल्ड दैट, ये सारे सेंस ऑर्गन्स की जो भी फंक्शन इसको कंट्रोल करती है। इट्स हेल्प अस टू लर्न एंड थिंक। हम लोग जो भी सीखते हैं, जो भी सोचते हैं, अगर नया कुछ सोचते, सपोज तुम लोग को कुछ एक्टिविटी दिया गया है या तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोले, तो उसके बारे में जब तुम सोचते हो कि उसको हाउ टू डू इट, इसको कैसे करना होगा, कैसे करने में वो अच्छे लगेगा, ये सारी जो थिंकिंग है ये हम लोगों को हेल्प कौन करती है, ये वाला पार्ट सेरिब्रम। ओके, नाउ इट कंट्रोल्स मेमोरी एंड द रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, नाउ आई टेल यू दैट। मेमोरी तो तुम लोग समझ गए हो कि जो भी हम लोग याद रखते हैं, व्हाट इज़ द रीजनिंग। जैसे कि सपोज हम लोग कोई गर्म चीज़ पे हाथ देने वाले होते, तो लेकिन हाथ मतलब जब हम लोग को बाहर से हम लोग देखते कि ये गर्म है, या तो कुछ भी ऐसे हार्मफुल कुछ इंसेक्ट को देखते तो हम लोग उसको नहीं पकड़ते। तो हम लोग क्यों नहीं पकड़े, रीज़न क्या है, क्योंकि ब्रेन हम लोग को ये इंस्ट्रक्शन दे रही कि वो हम लोग को हार्म पहुंच सकते हैं। गर्म चीज़ पकड़ने से हम लोग को जो हाथ को जल सकते, बर्न हो सकते। तो ये जो रीज़न है ये भी हम लोगों को किससे पता चलता है, दिस रीज़न इज़ ऑल्सो नोन फ्रॉम आवर ब्रेन। हम लोग की ब्रेन इसमें हेल्प करती है। ओके,
नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की सेकेंड पार्ट कौन सा है, सेरिब्लम. ओके, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज प्रेजेंट अंडरनीथ और बिलो द सेरिब्लम. जो सेरिबेलम होता है वो कहाँ में हो, कहाँ पे रहते हैं, सेरिब्लम ठीक सेरिब्रम की नीचे की वाला पार्ट होती है. ओके, एंड इट इज शेप लाइक का एक शेप, मतलब देखो ये अंदर में जो एक शेप का मतलब अंडे के जैसे जो शेप है सेरिब्रम के नीचे वाला पार्ट में, उसको कहते हैं सेरिबेलम. ओके, which is lies below the cerebrum. It is responsible for, अब what is the function of this part, इसका function क्या है, cerebellum का function होता है it controls our muscles like hand muscles, leg muscles, everything. When you are writing something, that time your hand muscle is working. When you are walking or running, that time the leg muscles is working. तो मसल क्या होता है, पेशी, मतलब जो हम लोग की जब कुछ काम करते तो वो उसमें हम लोग फिंगर से लिख रहे तो हम लोग की जो हैंड का जो मसल होता है वो हेल्प करते हैं. जब हम लोग दौड़ना चाहते हैं या तो चल रहा है तो उसमें हम लोग की लेग मसल्स कम कर रहा है. तो मतलब ये सारे जो मसल्स को, ये सारे चीज़ को कंट्रोल करते हैं दिस सेरिब्लम, ये वाला पर. एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. तो हम लोग की जो बॉडी वेट होती है दिस ऑल्सो मेंटेन बाय दिस पार्ट, that is cerebellum. Now the next and third part of the brain, that is medulla. It is shaped like a stem. See, this is like a stem of the plant. ये जो part है brain की, ये इसको देखने में ठीक पेड़ की जो stem होती है plant की उस तरह में है. That is why it is named as a brain stem. इसीलिए इसको कहा जाता है brain stem और medulla. That means these two things are same. Okay, medulla and brainstem ये दोनों चीज़ same है. तो it is shaped like a stem and lies at the base of the brain. Base का मतलब होता है नीचे वाला, brain का जितना brain का जो structure है जो उसका नीचे वाला part होता है उसको कहते हैं base part, मतलब जो सबसे नीचे रहते हैं उसको कहते हैं base. So medulla is the base part of the brain. It is also called the brainstem. The spinal cord passes through the brainstem before connecting to the brain. मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ आवर बॉडी. तो हम लोग की बॉडी के जो पीछे में रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, पहले ब्रेन से जाने से पहले अटैच किसके साथ रहते हैं, ब्रेन स्टेम. ठीक है, तो ब्रेन स्टेम क्योंकि एकदम नीचे वाला पार्ट होती है तो स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द ब्रेन स्टेम इज गोइंग टू द ब्रेन. ओके, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो मतलब ये वाला जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये इसके ठीक नीचे से, मतलब जो ब्रेन स्टेम के नीचे से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड एंड गोस इनटू द ब्रेन मेड्यूला टू द ब्रेन. तो जो ब्रेन स्टेम है उसी के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ जुड़ा रहते हैं. अंडरस्टैंड. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मेड्यूला, मेड्यूला का क्या काम है, मेड्यूला क्या काम करती है, द मेड्यूला इज कंट्रोल द हार्ट बीट एंड द ब्रीथिंग सिस्टम इन आवर बॉडी. तो मेड्यूला क्या काम करती है, मेड्यूला हम लोग की जो हार्ट बीट होती है और जो ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग रेट होती है, ये सारे चीज़ को कंट्रोल करती है. इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द इनवॉलंटरी एक्शंस सच एज ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड द डाइजेशन. ओके, so first part, that is brain, is completed. Now we are discuss about the second part of the nervous system, that is spinal cord, जो कि ब्रेन स्टेम की ठीक नीचे से हम लोग की बॉडी में स्टार्ट होती है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 vertebra. तो vertebra किसको कहते हैं, सी द पिक्चर, सी द पिक्चर. दिस इज वन पर, दिस इज जो रिंग जो पार्ट होती है उसको कहती है वर्टिब्रा. एंड इन द स्पाइनल कॉर्ड देयर आर टोटल 33 वर्टिब्रा. ये जो रिंग है वो 33 में होती है टोटल एक एडल्ट पर्सन में. दिस वर्टिब्रा मेक अ कॉलम, कॉलम मतलब एक ऐसे कॉलम, मतलब एक रो जैसे, जैसे ऐसे 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 एक के बाद एक ऐसे कॉलम करके एक रो बनाती है. इन विच लाइज अ बंडल ऑफ थिक रोप. सी द पिक्चर, दिस इज लुक लाइक अ थिक रोप. इसको देखने में एक थिक रोप की तरह लग रहे हैं, एक रस्सी की तरह. लाइक नर्व्स कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड, इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड. ओके, नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेडुला. ये मेडुला से स्टार्ट होता है जैसे मैंने बोला.
and goes down to the end of the spine nerves from our spinal cord. और नीचे में हम लोग की वेस्ट तक, मतलब हम लोग की कमर तक ये स्ट्रेट रहते हैं, मतलब मेडुला से स्टार्ट होती है और हम लोग की जो वेस्ट नीचे वाला पार्ट होती है वहाँ तक इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है. Through the spinal cord, messages comes into and goes out in between the brain and the rest of the body. तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू भी क्या होती है, जो मैसेजेस सेंस ऑर्गन से हम लोग की ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से हम लोग की सारे बॉडी में जाते हैं. ओके, सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो completed. Now the next part of the nervous system and the third part. नेक्स्ट ये जो पार्ट है ये लास्ट वाला पार्ट होती है नर्वस सिस्टम की, जैसे कि नर्व्स एंड द न्यूरॉन्स. ओके, तो ये होता है मेन चीज़ नर्वस सिस्टम की, जो कि सारा मैसेजेस को सेंस ऑर्गन से या तो कोई भी मसल से ब्रेन तक पहुंचाता है. ओके, एंड द शेप ऑफ द नर्व इज़ लाइक अ वायर. तार की तरह होती है, वायर की तरह होती है. ये जो नर्वस सिस्टम की नर्व्स होती है पूरा वायर की तरह काम करती है. ये सारा बॉडी में हम लोग की फैला रहते हैं. एज ए एग्जाम्पल यू कैन सी दैट व्हेन यू आर टॉकिंग विद द हेल्प ऑफ द टेलीफोन. जब हम लोग टेलीफोन में किसी के साथ बात करते हैं तो दो पर्सन्स बहुत डिस्टेंस पे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे के बात बहुत आसानी से सुन सकते विद द हेल्प ऑफ द वायर. टेलीफोन की जो वायर होती है उसके थ्रू हम लोग दूर से भी डिस्टेंस से भी एक दूसरे के बात क्लियरली सुन सकते हैं. तो ऐसे ही जो नर्व्स है हम लोग की बॉडी में, जो सारा बॉडी में हम लोग की रहती है, वो वायर की तरह काम करती है. मतलब मैसेजेस को, कोई भी जो भी हम लोग की संदेश होती है, जो हम लोग साथ देखते हैं, हम लोग उसको फील करते हैं, जो भी करते हैं, वो सारे मैसेजेस को नर्व क्या करती है हम लोग की डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से, जैसे कि आईज से, ईयर से, हैंड से, अलग अलग पार्ट से उस मैसेज को जाके ब्रेन तक पहुंचाता है. फिर ब्रेन जैसे इंस्ट्रक्शन देती है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, या तो जो भी हम लोग देखते हैं वो उसका रंग क्या है, क्या चीज़ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वापस से कौन लेके आते हैं हम लोग की सेंस ऑर्गन तक, ये नर्व्स. Okay, so nerve is also the vital part of the nervous system. Nerves are made of the nerve cells. Like the wire of a computer or a telephone, they link with every part of our body to the brain. Nerves transform the messages to and from the brain. मतलब to and from का मतलब एक बार लेके जाते हैं और एक बार वापस लेके आते हैं. So there are three kind of nerves. हम लोग की बॉडी में, इन आवर बॉडी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स आर प्रेजेंट. तीनों तरह का नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं. वन इज द सेंसरी नर्व्स, जो कि एक है सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशंस फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स टू आवर ब्रेन. मतलब सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को पहले लेके जो जाता है ब्रेन तक, वो काम कौन सा नर्व्स करती है, सेंसरी नर्व. ठीक है, सेंसरी नर्व हम लोग की बॉडी की अलग अलग डिफरेंट पार्टों से सेंस ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा देता है. सच एज आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन एंड ब्रेन. सी, सेंस ऑर्गन से मैसेज जा रहा है, सेंसरी नर्व लेके जा रहा है ब्रेन तक. ओके, नाउ सेकेंड वन इज द मोटर नर्व. सेकेंड वन इज द मोटर नर्व्स. अब मोटर नर्व्स का क्या काम होती है, motor nerves carry informations from our brain to our muscles or organs and they make them move. मतलब पहले कुछ भी चीज़ हम लोग देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी फील करते हैं, तो उस मैसेज को सेंसरी नर्व ब्रेन तक लेके जा रहा है और फिर ब्रेन उस मैसेज को रिसीव करके अंदर में अपने ले रहे और फिर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे. फिर वो इंस्ट्रक्शन कौन लेके आ रहा है, दिस मोटर नर्व्स कैरी करके ले आ रहा है हम लोग की सेंस ऑर्गन तक. देन वी आर नोन दैट व्हाट do with these things. फिर हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए और क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या सुन रहे, वो सारी चीज़ हम लोग को कौन से नर्व एक आके बताते, मोटर नर्व्स. ओके, नाउ थर्ड वन इज द मिक्स्ड नर्व. मिक्स्ड नर्व्स डू both type of jobs, carry messages from our body parts to the brain and the bring back order from the brain. मतलब जो मिक्स्ड नर्व होती है हम लोग की बॉडी में, वो दोनों तरह का काम करते हैं. सेंसरी नर्व्स की तरह भी काम करते हैं और मोटर नर्व्स की तरह भी काम करते हैं.
Okay, understood? Okay, now the next thing is the reflex action. reflex action का मतलब होती है जो instant action होती है, मतलब जिसके लिए टाइम नहीं मिलता हम लोग को, कि ब्रेन हम लोग के इंस्ट्रक्शन, ये जो प्रोसेस है कि जो भी हम लोग सेंस ऑर्गन के थ्रू फील कर रहे, देख रहे, सुन रहे, स्मेल कर रहे, वो सारे चीज़ पहले सेंसरी नर्व ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर ब्रेन जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको मोटर नर्व्स लेके आते, इसमें थोड़ा सा टाइम लगते हैं, टाइम टेकिंग होती है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन जब होने वाली होती है हम लोग के साथ, हम लोग की बॉडी के साथ, उसमें कुछ टाइम्स नहीं रहती, इंस्टेंट हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। सपोज कुछ टाइम हम लोग देखेंगे कि हम लोग की आँख के सामने अगर कोई अचानक से बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है तो हम लोग की आई लैसेस को ब्लिंक करते हैं, आइज़ अचानक से बंद हो जाते हैं, या तो तुम्हारी आँख के सामने अगर कोई भी शार्प चीज़ आ जाते हैं अचानक से, सडनली any sharp things reach to our eyes, so that time we are instantly close our eyes or blink our eyes. So then sometimes some dust particles goes into our nose and we are sneezing. अगर कुछ डस्ट पार्टिकल हम लोग की नोज़ के अंदर जाते हैं तो इंस्टेंटली हम लोग को स्नीजिंग होती है. एंड देन इफ़ यू touch your hand with any hot thing, so that time we are instantly move away our hands, right? So in that cases we are not getting any time, we are do this action instantly. This kind of action is known as रिफ्लेक्स एक्शन. इस तरह का जो भी काम होता है जबकि अचानक से होती है, इंस्टेंटली होती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. इसमें ब्रेन का कोई काम नहीं रहते. जो रिफ्लेक्स एक्शन जो भी होती है हम लोग उसमें ब्रेन कुछ हेल्प नहीं करती है. उसमें कौन हेल्प करती है? स्पाइनल कॉर्ड. हम लोग की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड हम लोग को हेल्प करती है ये बताने में, ये इंस्टेंट करने में. सम ऑफ आवर एक्शंस आर इंस्टेंट एंड ऑटोमेटिक. What happens when any object comes near our eyes? As I told just now, it will blink immediately. This is an instant action of our body. Without thinking, such an action is called the reflex action. मतलब हम लोग के पास सोचने का उतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग को ये करना चाहिए, हम लोग तुरंत ही कर लेते हैं. So that is called the reflex action, right? Now, such as mouth watering, sneezing when foreign particles enter our nose. Mouth watering. That means if any your favorite dishes or any delicious food comes to your near, अगर कोई भी delicious dish जो तुमको पसंद होती है, जो तुमको बहुत खाने की मन करती है, अगर अचानक से तुम्हारे सामने आ जाए तो उसको देख के हम लोग को में क्या आती है, हम लोग की मुंह में पानी आने लगती है. Our mouth is watering. So this process, this all things that happen immediately. ये सारी चीज़ इंस्टेंटली हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है. ये सारी चीज़ को कहती है रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, नाउ पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. सो इफ इन योर एग्जाम द क्वेश्चन इज कम दैट give some activity or name some activity of the reflex as example of the reflex action. Now all of you write that the mouth watering, the sneezing, blinking our eyes, this all are the example of the reflex action. ये सारे जो activities होता है ये reflex action की वजह से होती है. Okay, now the reflex actions are controlled by the spinal cord. The sensory nerves immediately send the signals to the spinal cord, and the spinal cords order the motor nerves to blink eyes or withdraw the hand. मतलब इसमें ब्रेन का कुछ काम नहीं रहते, उतना टाइम नहीं रहते नर्व्स के पास. तो नर्व क्या करती है, तुरंत उस मैसेज को जाके स्पाइनल कॉर्ड में दे देती है, और स्पाइनल कॉर्ड हम लोग को उस टाइम पे हेल्प करती है या तो इंस्ट्रक्शन देती है कि हम लोग को क्या करना चाहिए. ओके, now the reflex action takes a shortcut. The messages does not go to our brain. This saves the time and prevent major injury because the instant action. अगर इस टाइप की जो भी एक्टिविटी होती है, तो अगर हम लोग ब्रेन की इंस्ट्रक्शन की वेट करते तो उस टाइम में हम लोग की बॉडी में वो कुछ ना कुछ हार्म हो सकती है. अगर suppose your body is touched with any hot object and then you are wait for our brain instruction. अगर हम लोग ब्रेन की इंस्ट्रक्शन की वेट करते तो क्या होते, तो हम लोग की जो बॉडी और जो स्किन है वो बर्न हो जाते. लेकिन नहीं, हम लोग ऐसे नहीं करते. मतलब हम लोग तुरंत अपने हाथ को हटा लेते ड्यू टू आवर रिफ्लेक्स एक्शन, एंड स्पाइनल कॉर्ड हेल्प इन दिस एक्शन. स्पाइनल कॉर्ड हम लोग की इस एक्शन में हेल्प करती है.
Okay, so up to here we are completed on today. In the next class we are discuss rest of this chapter. I hope which portions I am taught today you have to very enjoying and you have understand properly. So all of you learn the chapter properly. Thank you students. Have a good day. Take care yourself. Bye bye.